Good morning, everyone, and have a very happy new year. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you worksheet 6. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 1 January 2021. With this, you have to mention online classwork in your copies. And with this, you have to mention lesson 22 in your copies. Topic of the lesson is transformation of sentences. So as you all have seen that yesterday we have started our lesson 22. So I have provided two YouTube links in your group through which I hope you all have understood the explanation of lesson 22. I have explained all the rules that how can we transform a sentence from one type to another. In yesterday's worksheet, we have transformed some sentences that were based on the meaning from one type to another type, and in today's video I will explain you that how can we transform a sentence from one type to another based on the structure. So let's see the exercise, that is convert these sentences as instructed in the brackets. So these sentences are based on the structure which are simple, compound, complex and complex compound. How we can transform from one type to another, let's see. The instructions are being given in the bracket only. फर्स्ट सेंटेंसेस, दे आर पुअर बट दे आर ऑलवेज हैप्पी. वो गरीब हैं लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं. सो इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज इट टू सिंपल सेंटेंस. सो हमने क्या किया, टू चेंज इट टू सिंपल सेंटेंस वी हैव यूज्ड बीइंग. इवन आफ्टर बीइंग पुअर दे आर हैप्पी. गरीब होने के बावजूद भी वो खुश हैं. सेकेंड सेंटेंस इज बीइंग डाउन विद द फ्लू ही कुड नॉट गो फॉर द मैच. फ्लू के कारण वीक होने की वजह से वो मैच के लिए नहीं जा सका. इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज टू कंपाउंड सेंटेंस. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक टू क्लॉसेस एंड वी हैव टू जॉइन विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सो हमने क्या किया, ही वॉज डाउन विद द फ्लू, वो फ्लू के कारण कमजोर था, एंड कुड नॉट गो फॉर द मैच, और मैच के लिए नहीं जा सका. सो वी हैव जॉइन टू क्लॉसेस बाय यूजिंग द कंजक्शन एंड विच इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. थर्ड सेंटेंस इज the workers finished their work and went home. It is a compound sentence and we have to change to simple sentence. So we can change a compound sentence to simple sentence by using having plus third form of verb, which is past participle or past perfect participle. I have explained in the explanation of the lesson. So here we have made having finished their work, the workers went home. अपना काम पूरा करने के बाद जो workers थे वो घर चले गए. फोर्थ सेंटेंस इज ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड इन एकेडमिक्स. उसने कठिन परिश्रम किया एकेडमिक्स में पास होने के लिए. इट इज अ सिंपल सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज टू कॉम्प्लेक्स. सो द सेंटेंस विच वी हैव चेंज दैट इज ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड इन एकेडमिक्स. उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो एकेडमिक्स में सक्सीड हो सके. सो हेयर हमने क्या किया, टू रिमूव किया एंड वी हैव एडेड सो दैट एट द प्लेस ऑफ टू, सो दैट. नेक्स्ट इज फिफ्थ सेंटेंस, the statue of the chief minister that was made of marble was brought from Jaipur. जो चीफ मिनिस्टर की स्टेच्यू थी मार्बल की बनी हुई, वो जयपुर लाई गई. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज टू सिंपल सेंटेंस. सो हमने क्या किया, द मार्बल स्टेच्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर वॉज ब्रॉट फ्रॉम जयपुर. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मार्बल स्टेच्यू ओनली. सिक्स सेंटेंसेस, शी ट्राइड कन्विंसिंग हिम बट फेल्ड. उसने उसे कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गई. इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो वी हैव changed to complex sentence by using the conjunction, that is subordinating conjunction. although she tried convincing him, हालांकि उसने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, she failed, वो फेल हो गई. नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन स्पॉटिंग द डियर द फोटोग्राफर एडजस्टेड हिज लेंस. हिरन दिखने पर फोटोग्राफर ने अपने कैमरे के लेंस को एडजस्ट किया. इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए वी हैव टू मेक टू क्लॉसेज एंड वी हैव टू यूज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. द फोटोग्राफर एडजस्टेड हिज लेंस व्हेन ही स्पॉटेड द डियर. फोटोग्राफर ने अपने लेंस एडजस्ट किए जब उसने हिरन को देखा. नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीवन नोज दैट ही इज वेरी टैलेंटेड. हर कोई जानता है कि वो बहुत टैलेंटेड है. It is a complex sentence and we have to change to simple sentence. So we have made everyone knows of his talent. हर कोई उसके टैलेंट के बारे में जानता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज यू हैव टू बी 18 और यू कैन नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. तुम्हें 18 साल का होने की ज़रूरत है या फिर तुमको लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं मिलेगा. इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस बिकॉज वी हैव जॉइन टू क्लॉसेज बाय यूजिंग और
एंड वी हैव टू चेंज टू कॉम्प्लेक्स। सो हमने क्या किया यहाँ पर, अगेन हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया। अनलेस यू आर 18, जब तक कि तुम 18 साल के नहीं हो जाते हो, यू कैन नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हें एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ यू डोंट टेक अ हॉलीडे नाउ, अगर तुम अभी छुट्टी नहीं लेते हो, यू वोंट फाइंड टाइम फॉर इट लेटर, तुम्हें बाद में इसके लिए समय नहीं मिलेगा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इफ कंजक्शंस के साथ हमने इसको ज्वाइन किया है। एंड वी हैव टू चेंज टू कंपाउंड, सो दैट मीन्स हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करना है। टेक अ हॉलीडे नाउ, अभी एक छुट्टी लो, और यू वोंट फाइंड टाइम फॉर इट लेटर, बाद में तुम्हें उसके बाद इसके लिए समय नहीं मिलेगा। सो हेयर वी हैव जॉइन टू क्लॉजेस बाय यूजिंग द कंजक्शन और। So this was the exercise related to lesson 22. I hope the transformation is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.